Hi everyone, good morning. Thank you for joining on a Saturday morning. So we have with us today Mr. Vikas Khemani, founder Carnelian Asset Management. So Vikas has almost more than 27 years of work experience. Before founding Carnelian in 2019, he was the CEO of Edelweiss Securities for 17 years. So a pretty long track record, I would say. Thank you, Vikas. Thank you for joining on a Saturday morning. Here today we have our entire sales team, Centricity, as well as we have our external partners. We work as a B2B sub-broker model. So we have our external partners as well as a few of their clients are also invited. We have to mix Hindi and English because it's a pan-India call. So I'll also try to speak a bit of Hindi, English both. Vikas, before we start, I think we deal with a lot of managers on the alternate side. We deal with almost 70 managers. But I think the track record that I've seen for you, the asset jump that I've seen for you, I was doing an analysis for a very large family office. I saw your jump. I mean, Carnelian Shift Strategy, AUM in 2021-22, you may correct, was 60-100 crores. Today it's 4,000 crores. एंड द परफॉर्मेंस अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो सिंस इंसेप्शन अल्फा ऑफ 16-17% with this much assets consistently. So my first question is, I mean, what is your secret sauce? How do you build it? And probably you can cover the part in terms of philosophy, process. To ठीक है you, to you. वन आवर वन आवर यू वांट मी टू मूव ओके thank you very much Vinayak. Good morning to all of you. Thank you for coming on this Saturday morning. uh, I think after my initial talk थोड़ा interactive रखते हैं. Yeah. Feel free to ask questions or whatever. So what I will do is first I will give you some perspective about थोड़ा हमारा कार्निलियन का जर्नी कैसा रहा और कैसे चालू किया. So, as Vinayak was saying, I was with Edelweiss for 17 years. I joined Edelweiss when it was a 20 people company. So, it was a very small company. And usse pehle I used to work with ICICI Securities. So that is where I used to meet the founder of Edelweiss, Ashish, and he used to come and say, like, why don't you come and build businesses for us? So that's how I joined. So वहाँ पे I was CEO of Edelweiss Securities, where I built 7 businesses: institutional equities, research, अपना prime brokerage, FX, insurance advisory, and so forth. तो काफी मजा आया. But after spending 17 years, I wanted to start something of my own. That's how I left Edelweiss in 2018 and started Carnelian in 2019. तो मजे की बात यह है कि मैंने only one business which I did not do in Edelweiss was manage third party money. दूसरे का कोई पैसा मैनेज नहीं किया. तो I didn't have any track record to say कि मैंने 20 साल पैसा रेज किया, unlike most of our competitor who had some or other track record कि हमने इतना जनरेट किया, इतना अल्फा है. बट अपने पास तो कुछ भी नहीं था. एक कहानी थी बस और थोड़ा जोश था. तो बस सो वट एवर वी स्टार्टेड विद, व्हेन वी स्टार्टेड वी कुड ओनली मैनेज टू रेज, जो भी हमारे जान पहचान के लोग थे जिन्होंने हमको ट्रस्ट किया, 150 करोड़ रुपए थे. So we could manage to raise only 150 crores in 2019 of May. And then, of course, as we started the journey, COVID happened in 8-9 months time, and that was another setback. But उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी आई. तो जैसे कि हमने उसमें वो शिफ्ट स्ट्रेटजी लॉन्च की जिसकी आपने बात करी थी, आई विल टॉक मोर अबाउट दैट लेटर. Today, as we speak, we manage close to 12,000 crores across all our products, and we have as you would say, as I was saying, displayed a great track record. And maybe हम इसलिए शायद इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड कर पाए या बना पाए क्योंकि हमारा इंडस्ट्री से बैकग्राउंड नहीं था. तो वी कुड थिंक अफ्रेश, वी कुड प्लान अफ्रेश, वी कुड bring a very differentiated approach to investing, and that is what we have done here, and which I will share. Just one second. Sorry, there was a lot of noise coming as soon. Shut the door. So, so what I want, so हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम सोच नई सोच के साथ हमने काम चालू किया. एंड विच इज व्हाट आई विल शेयर विद यू इन टर्म्स ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट फिलोसफी. बिकॉज अल्टीमेटली मैं सबको ये बोलता हूँ कि खाली रिटर्न्स देख के कभी पैसा मत डालिएगा, क्योंकि रिटर्न्स तो आगे पीछे हो सकते हैं. आप लोगों को जानो, उनकी इंटेंशन को जानो, उनके पर्पज को जानो और उनकी स्टाइल को जानो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. दैट
why somebody is doing what he's doing, and secondly, what is the sort of passion of the person behind what he's doing, and numbers तो जो है वो तो आउटकम होता है. तो सो पहले तो बता दूं why we are doing so financially we are all well settled, all founders, there is no need for us to work from a career perspective, but हमने हमारी करियर छोड़ के why we started was हमारा main motivation was to build an organization which 10-15 years down the line we can look back with lot of pride and satisfaction कि हमने बनाया. That is our main motivation. जो जो भी करते हैं उसके पीछे ये मोटिवेशन है. तो वी डोंट टेक एनी शॉर्टकट. जब हम छोटे थे तभी भी कोई शॉर्टकट नहीं लिया, जब बड़े हैं तभी भी कोई शॉर्टकट नहीं लिया, आगे भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी काम करना है, अच्छा काम करना है और रेपुटेशन बनानी है. आफ्टर दैट थिंग्स विल प्ले आउट इन इट्स ओन वे. So that is our main purpose. And now I think we are doing well. Now, in terms of our investment philosophy, if I were to say in one line, it is quality growth at a reasonable price, right? ये सारी चीजें now ये थोड़ा क्लिशेड भी लगता है, but this is our purpose. Now let me elaborate how we are different. So whatever we do rest on two pillars: growth and risk. Let's first talk about risk and then we'll come to growth. So risk is very important for us. We are in a business of taking risk, but we have two very core fundamental beliefs around risk. Number one, you should take risk only when the risk reward is in favor. Secondly, you can manage the risk well, provided you know source of risk. कहाँ से risk आती, source क्या है इस चीज का, risk आती कहाँ से है. From a source of risk perspective, we divide risk into three parts: type A, type B, and type C. Now let us discuss each of them further. Type A is the risk of permanent loss of capital. मतलब आपने रुपया लगाया और आपका 80 से 100% रुपया टूट गया, वापस नेवर कभी, नेवर टू रिकवर बैक. Very, very important risk, permanent loss of capital. Source of this risk is only twofold. Either you bet on an inferior quality of the management, खराब आदमी पे रुपया लग गया, or you bet on a business which is prone to disruption, और बिजनेस से डिसरप्ट हो गया. अगर आप ये दो चीजें अवॉइड कर लेते तो आपका रुपया कभी पूरा टूट ही नहीं सकता है. मतलब कम बन सकता है, दैट इज पॉसिबल, बट कभी नहीं टूटेगा. सो इसके अराउंड वी हैव अ वेरी डीप कैपेबिलिटी, कोर कैपेबिलिटी. जब हम एडलवाइस में थे 2007 में, हमने पहली बार इंडिया में एक प्रोडक्ट चालू किया था, फॉरेंसिक रिसर्च, जिसका नाम था एनालिसिस बियॉन्ड कंसेंसस, जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स में काफी पॉपुलर था. जिन जिन क्लाइंट्स को हम एडवाइज करते थे उनके लिए बहुत पॉपुलर था. तो हम दैट बेसिकली सो डूइंग फॉरेंसिक रिसर्च एनालिसिस मीनिंग काफी डिटेल में प्रमोटर्स का बैकग्राउंड जानना, उनकी पॉलिसी जाननी, नियत जानना, उस पर काफी हम काम करते हैं. तो जैसे कि अभी हमने ऐसे सिस्टम बनाए, इनफैक्ट उसको हमने काफी डेवलप किया है फर्दर इन कार्नेलियन. Before we start investing into any company, like we have built system, if I put a ticker of the company, name of the company, it pulls data from different sources, and उसके आउटपुट में आता है कि इसमें रेड अलर्ट्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, लैंड माइन्स क्या है, रिस्क क्या है. दैट इज हाउ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन एनी कंपनी, रिसर्चिंग ऑन एनी कंपनी. उसके बाद में हम मैनेजमेंट से मिलते हैं, प्लांट विजिट करते हैं, एम्प्लॉयज से बात करते हैं, एक्स एम्प्लॉयज से बात करते हैं, उनके वेंडर्स से बात करते हैं, ऑडिटर से समटाइम बात करते हैं, depending on how much depth we want to go, depending on what is the information we are looking for. So this is a very, very core capability for us. And our biggest promise to our investors is that you will not find corporate governance issue in our portfolio. So type A risk is something we will never take, and very, very important risk. Then comes type B risk, which is risk of mark to market or volatility risk, meaning after you invest temporarily stock prices goes down. Now source of this risk is anything political, geopolitical, कुछ न्यूज इधर से आया, कुछ न्यूज उधर से आया, रूमर्स आया, anything can be. This risk is unpredictable, unmanageable, very relevant for a day trader or a leveraged player. हम दोनों ही नहीं करते हैं, इसलिए we don't spend time on this risk. Then comes type C risk, which is risk of opportunity loss, meaning you should have invested into stock A or sector A, but you invested into stock B or sector B, thereby generating suboptimal return. मतलब जो पैसा आप बना सकते थे वो आपने नहीं बनाया. नो टेक्निकली स्पीकिंग ये नोशनल रिस्क है, जो पैसा आप बना सकते थे, बट हमको लगता है रियल रिस्क है. व्हाई? बिकॉज एवरीबडी हैज अ फाइनाइट पूल ऑफ कैपिटल. कितना भी बड़ा 1,000 करोड़ रुपया है तो भी सबके पास लिमिटेड कैपिटल है. उस लिमिटेड कैपिटल पे आपको सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बनाना होता है, राइट? तो कई बार लोग कहते हैं कि अरे मेरा पैसा टूटा नहीं तो कोई बात नहीं. दैट्स नॉट अ राइट वे टू लुक एट. एंड इसके मैं कुछ आपको एक दो एग्जांपल भी दूंगा बाद में. सो ये इंपॉर्टेंट रिस्क है. सो
इसके भी दो सोर्स होते हैं। वन इज लैक ऑफ नॉलेज, अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है हाउ टू इवेल्युएट अ पर्टिकुलर सेक्टर कंपनी, हाउ टू सी, हाउ लाइक टैप इनटू दैट। Secondly, long held human bias. Investing is equally behavioral science. We suffer from our biases. And those biases allow us not to act rationally and objectively. जैसे एक एग्जाम्पल होता है, कोई आदमी ने 100 रुपए में कोई स्टॉक खरीद लिया, उसका भाव 80 रुपया हो गया। अब उसको पता है गलती हो गई, फिर भी वो उसका 100 रुपये आने का वेट करेगा। उसको ये नहीं करेगा कि मैं 80 वाला दूसरे को स्टॉक में 100 रुपये वाले में डाल के उसका 200 कर लूं। वो 100 का आने का वेट करेगा। दे विल। सो ये बहुत सारे बाइसेस ऐसे हैं, कोई एक नहीं, पूरी सब्जेक्ट की बात है, बट सो इस पे हम बहुत बड़ा फोकस करते हैं। जो हमारी टोटल फोकस रिस्क है उसमें टाइप ए अलाउज अस टू प्रोटेक्ट कैपिटल, टाइप सी अलाउज अस टू आउट परफॉर्म मार्केट। ये हमारा पूरा रिस्क फ्रेमवर्क है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर एफर्ट, जिसपे हम एफर्ट डालते हैं, इसको ग्रोथ। पैसा बड़ा ग्रोथ में ही बनता है। We will never buy any stock just because it is cheap. We like cheap stocks, but growth is a must or essential condition to that. Now, growth को हम लोग ब्रॉडली दो भागों में देखते हैं, टू बास्केट्स में देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैजिक बास्केट एंड कंपाउंडर बास्केट। Now, what do I mean by magic basket? In magic basket, we invest into companies with a view to capture earnings growth and valuation re-rating. मतलब सपोज कोई कंपनी का 10 रुपए का ईपीएस है, प्राइस टू अर्निंग 10 रुपया है, तो स्टॉक का भाव हो गया 100 रुपया। नाउ अर्निंग ईपीएस जो है 10 का 20 हुआ, पर पी 10 का 10 ही रहा, तो स्टॉक का भाव हो गया 200 रुपया। पर ईपीएस 10 के साथ 20 हुआ, पर पी भी 10 का 20 हो गया, तो 400 रुपया हो जाएगा। तो 20 × 20, 400 रुपया। तो ये बास्केट में हम ये 100 से 400 की जर्नी को आ, आ, पूरा करने की कोशिश करते हैं, कि जहां पे अर्निंग की भी ग्रोथ है और स्टॉक का वैल्यूएशन भी एक्सपेंशन हो। बिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि आप हाउ डू आइडेंटिफाई कंपनीज इस तरह कंसिस्टेंटली। तो इसके लिए हमने एक हमारा खुद का प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क बनाया हुआ है, मॉडल बनाया हुआ है, जिसमें हर हर टाइम पे हम लोग 80 से 100 आइडियाज को ट्रैक करते हैं। ये ये सिचुएशन जनरली 8 से 10 सिचुएशन में होता रहते हैं। आपको मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। वन वेरी कॉमन सिचुएशन व्हेन दिस हैपेंस इज गुड बिजनेस, पुअर मैनेजमेंट, पुअर सीईओ, चेंज ऑफ मैनेजमेंट, चेंज ऑफ सीईओ हैपेंस, एंड आफ्टर यू बिलीव, after doing your work, you believe that new management, new CEO can address the issues of the past, then it is invariably followed by valuation re-rating and earnings growth. जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमने जब मई 2019 में चालू किया, तो हमने अपने सबसे पहला स्टॉक खरीदा आईसीआईसीआई बैंक। उस टाइम पे 280-90 रुपए का भाव था। अक्टूबर 18 में नए सीईओ आए थे, संदीप बख्शी साहब। बैंक तो अच्छी थी, ब्रांड अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छा है, बैलेंस शीट ठीक था। उससे पहले हमको सबको पता था क्या हो रहा था। तो चेंज ऑफ सीईओ हुआ, हम उनको मई 19 में मिले। वी वर सुपर इम्प्रेस्ड कि उन्होंने पिछले 6 महीने में व्हाट ही चेंज वो अचीव्ड। ही चेंज द कल्चर एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द बैंक, एंड इन 6 मंथ्स टाइम वी कुड सी अ वेरी डिफरेंट बैंक। वी लुक्ड अराउंड, किसी के पास स्टॉक नहीं था, सबकी टॉप होल्डिंग एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक थी। हमको जब ये कन्विक्शन, किसी के आधा टका 1 टका कुछ होगा, हमको जब कन्विक्शन आया, हमने 10% हमारे फंड का आईसीआईसी बैंक में डाला, जो आज 5 साल में 1500 के आसपास हो गया है। 5x 5 years। वन टाइम बुक चीपेस्ट बैंकिंग स्टॉक से आज मोस्ट एक्सपेंसिव बैंकिंग स्टॉक हो गया है। सेम भी हमने सिप्ला में डाला, जब उमंग आया 400 रुपये में, आज 1600 है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने 600 रुपये में, जब अनीश ने लीडरशिप लिया तब डाला, आज 3000 रुपया है। आदित्य बिरला कैपिटल हमने 2 साल पहले जब विशाखा मुलाय आई, ऐसे 100 रुपए के भाव में, किसी के पास नहीं था स्टॉक, आज अभी 270 में सबने, काफी लोगों ने लिया है। सो वन टाइम बुक से आज 2 ढाई टाइम बुक हो गया। सो इस तरह का हम कॉन्स्टेंटली, एक ये सिचुएशन होती है जैसे जब कि ऐसा री रेटिंग पॉसिबल होता है, अर्निंग ग्रोथ करने की कोशिश होती है। एक और सिचुएशन बताता हूँ विद इन मैजिक बास्केट ओनली। आई विल नॉट गो थ्रू ऑल, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। Another time when it happens is whenever you think there's a structural change happening in a particular sector or a theme which is going to last 8, 10, 15 years, तब आप उस सेक्टर के थीम की टॉप कंपनियां उठाइए, उनमें इन्वेस्ट कीजिए, आपको इनवेरिएबली रिलेटिव हो जाएंगी। जैसे मोर एंड मोर पीपल फिगर आउट वो होगा। तो जैसा कि पेंडेमिक के बाद में, पोस्ट पेंडेमिक हमने दो बड़े ट्रेंड देखे अगस्त 2020, सितंबर 2020 के आसपास, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि विनायक बता रहा था कि हमको इतना कन्विक्शन था कि हमने एक नई स्ट्रैटेजी लॉन्च कर दी, शिफ्ट स्ट्रैटेजी। और उस स्ट्रैटेजी को जब हमने लॉन्च किया, किसी को बिलीव नहीं था। एवरीबडी से वी डोंट डू थीमेटिक। ऐसे कि थीमेटिक नहीं है, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमको क्या लगा, खाली हमारे करंट फंड में हम थोड़ा ओवरवेट हो जाएंगे, उसमें मजा नहीं आएगा। ऑल वी कुड मैनेज वाज 20 करोड़, जो आज 4 साढ़े 4 हजार करोड़ का है फर्स्ट क्लोज में।
बट हमारा कन्विक्शन इतना था, वी केप्ट ऑन मेकिंग प्रेजेंटेशन, वी केप्ट ऑन गोइंग टू पीपल सेइंग दिस विल वर्क। नाउ आप ये समझिए कि सबने मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया 2023-24 में, 22-23-24 में। हमने 2020 में लॉन्च किया। व्हाट डिड वी सी दैट, तो अगर कोई हमारी प्रेजेंटेशन हमारी वेबसाइट पे उस टाइम की लॉन्च प्रेजेंटेशन सुनेगा, तो उसको लगे आज सारे के सारे लोग वही डेटा यूज करके लॉन्च करते हैं। व्हाई वी कुड सी दैट अपॉर्चुनिटी 3 years ahead of us बिकॉज ऑफ दिस मैजिक बास्केट फ्रेमवर्क। सो ये मैजिक बास्केट फ्रेमवर्क हमारा बहुत ही डिफरेंशिएटेड फ्रेमवर्क है, डिफरेंशिएटेड वे ऑफ थिंकिंग है, जिसकी वजह से हम लोग इसको स्पॉट कर पाते हैं। दैट्स अ मैजिक बास्केट फ्रेमवर्क। सेकंड इज व्हाट आई कॉल वाज कंपाउंडर बास्केट, जहां पे we invest into companies with a view to capture only earnings growth. Valuation re-rating may or may not happen. तो यहाँ पे typically good business model, good management, well discovered stock, reasonably priced, not very expensive but not very cheap either, reasonably priced. But you can see the companies can deliver 15 to 18% earning growth for a very long period of time. तो उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे आईसीआईसीआई बैंक 5 साल पहले मैजिक में था, पर अभी वो कंपाउंडर है। आई कांट एक्सपेक्ट इट टू गो फर्दर री-रेटेड ऑफ 4 times, राइट? तो ऐसे स्टॉक माइग्रेट भी करते रहते हैं मैजिक से कंपाउंडर में, बट तो यहाँ पे हम वो स्टॉक्स लेते हैं। इस बास्केट में नाम ढूंढना थोड़ा सा आसान है, बट यहाँ पे रिस्क ढूंढना मुश्किल है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी रिस्क जो होती है, वो बिजनेस और मैनेजमेंट की रिस्क नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी रिस्क है रिस्क ऑफ डी रेटिंग, राइट? नाउ जैसे कि आपको बताता हूँ, पिछले 5-6 सालों में every meeting I went to, not only we never bought, but every meeting I went to, I said with logic that why HDFC Bank will get de-rated. तो आप बजाज एशियन पेंट विल गेट डी-रेटेड, बजाज फाइनेंस विल गेट डी-रेटेड, राइट? नो आप देखो एचडीएफसी बैंक ने पिछले 5-6 सालों में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न दिया है, आईसीआईसीआई बैंक ने 5x रिटर्न दिया है। सेम सेक्टर, लार्ज बैंक। दिस इज व्हाट आई मेंट वाज टाइप सी रिस्क, रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस। आपका टाइप ए रिस्क नहीं है एचडीएफसी बैंक में, पैसा टूटेगा नहीं, पर पैसा बनेगा भी नहीं। तो तो हमको, हम रिस्क तो ले रहे हैं, पर वो रिस्क हमको फील नहीं हो रही है। सो टाइप सी रिस्क, रिस्क ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इन व्हेन यू डू इन्वेस्टिंग, which is a very least understood subject according to me, and hence I keep on highlighting. So इस तरह से हमारी मोटा मोटी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी चलती है। We do think a lot about business model, what will be successful, what will not be. But more than business model, also we pay a lot of attention to the quality of the management. हमारे लिए कौन क्वालिटी मैनेजमेंट कौन है, उसकी बहुत बड़ी फर्क पड़ती है। ब्रॉडली वी लुक एट 3 things इन एनी मैनेजमेंट: कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी एंड ड्राइव। कैपेबल, काबिलियत कैसी है, नियत कैसी है, और पेट में भूख कितनी है, ड्राइव कितना, राइट? इफ यू हैव कॉम्पिटेंस, नो इंटीग्रिटी, we will not make money as a minority shareholder. You have competence, integrity, no drive, no पेट में भूख, company will not grow. You have drive, integrity but no competence, काबिलियत नहीं है, तो आपको कंपटीशन बढ़ा देगा। तो बड़ा वैल्यू क्रिएट करने के लिए आपको तीनों का कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ फॉर्म में चाहिए, तो आप उसको कर सकते हो। तो ये हमारा मोटा मोटी नजरिया है इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी का। जो भी हम कोई भी स्ट्रैटेजी हो, उसमें सब में ये आपको मोटा मोटी कॉमन फीचर्स मिलेंगे। हम लोग कभी भी, लाइक आई सेड, कि हम जब तक हमको रिस्क रिवॉर्ड को इन्वेस्टिंग का समझ में नहीं आता, वी विल नॉट बाय, चाहे वो कितना भी मार्केट में चल रहा हो। तो जैसे कि हम कभी कोई फैड्स को चेज नहीं करते हैं। जब 2021 में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग की बोल रहे थे, 2021 में सब लोग न्यू टेक की बात कर रहे थे, 2021 में एवरीबडी वाज चेजिंग न्यू टेक, एंड इनफैक्ट वी रोट अ नोट दैट टाइम कॉल्ड फैड, फोमो, फेड, कि ये फैड चल रहा है, पीपल आर इन्वेस्टिंग आउट ऑफ फोमो एंड दिस विल फेड अवे। तो आप देखो, आप जिस वो एक आप कलेक्टिव रिटर्न देख लो वो बास्केट का, उस टाइम की जो भी न्यू टेक कंपनी है, आप उनका देख लो, 4 साल बाद में रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो होगा और नेगेटिव होगा बल्कि। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो बोरिंग सेक्टर था, उसने 40% का सीएजीआर दिया है। तो आपको वेरी ऑफन यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द टेम्पटेशन ऑफ इन्वेस्टिंग आउट ऑफ फोमो। हम वो काम इसलिए नहीं, कोई भी काम इसलिए नहीं करते कि सब लोग कर रहे हैं। वी डोंट माइंड, जब हमको, जब सबकी टॉप होल्डिंग एचडीएफसी बैंक थी, हमारी आईसीआईसीआई बैंक थी। तो जब किसी ने आदित्य बिरला कैपिटल नहीं खरीदा, हमने आदित्य बिरला कैपिटल खरीदा। जब कोई मैन्युफैक्चरिंग को देख नहीं रहा था, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का वैल्यू। सो सो जो ये जो थोड़ी सी हटके सोच है, उसकी वजह से हमारा शायद थोड़ा परफॉर्मेंस हटके भी आता है। एंड दैट इज व्हाट गिव्स अस प्लेजर, लाइक आई वाज सेइंग, कि हमको काम बढ़िया करना है, बढ़िया। और बेसिकली व्हाट वी आर चेजिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सीलेंस एंड स्केल।
बढ़िया और बड़ा। तो ये दोनों को हम लोग हमारी तरीके से लगे रहते हैं, और वही हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी स्पेशलिटी है। क्योंकि अगर मैं बढ़िया कर लूं, पर ये मैं अगर सिर्फ स्ट्रैटेजी का 100 करोड़ का पैसा मैनेज कर रहा होता तो मेरे को विनायक कॉल पे बुलाता भी नहीं। ठीक है। तो आपको बढ़िया भी करना है और बड़ा भी करना है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे। आप बड़े हो जाओगे और बढ़िया नहीं करोगे, तो आपको थोड़े टाइम में बोलोगे नहीं नहीं ये तो नंबर आ ही नहीं रहे भैया, ये तो छोड़ो। कई हाउसेज जो 9-10 हजार करोड़ हो गए वापस 4 हजार करोड़ पे आ गए, क्योंकि आपने बढ़िया नहीं किया। तो आपको उस कांस्टेंट उस चीज को दोनों पायों पे करते रहना पड़ता है। सो ये हमारी इन्वेस्टिंग फिलोसफी है। विकास, आई थिंक परफेक्ट, मतलब बहुत अच्छे से समझाया। एंड आई थिंक एक पहला क्वेश्चन भी इसी पे था, एंड आई थिंक आई हैव अ फॉलो अप ऑन दैट एज वेल। दैट अभी क्या है विकास, आई सी अ लॉट ऑफ partners, sub brokers coming back to me because see, PMS India's market is growing. You know how big the Indian market is. A lot of new PMS guys comes in the in the industry. और क्या है कि परफॉर्मेंस भी अच्छा है, ऐसा नहीं होता, अभी मार्केट भी बूम में रहा, बहुत कुछ है। तो मैं बहुत ज़्यादा रिवर्स इंक्वायरी पे जब मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, आई लुक एट स्ट्रैटेजीज, आई सी दैट टीम बहुत छोटा होता है, 3-4 लोगों का टीम होता है, 5 लोगों का टीम होता है, दे मैनेज मिड एंड स्मॉल कैप, देयर यूनिवर्स इज 150-160, एंड समहाउ यूजली आई एम नॉट एबल टू गेट कन्विंस्ड कि ये कैसे स्ट्रैटेजी मैनेज होएगी। तो my point to you is that, how big is your back-end research team? Because this is one question which has been asked as well. And why is it important to look at a PMS house? Because lot of बहुत सारे सब brokers भी call पे होंगे, our partners will be on the call. So why is it important to look at, not which you covered, that return is a byproduct. हमें सिर्फ return नहीं देखना है, return तो process philosophy का part है। बट हाउ डू यू अगर हमें बताना है कि एक बैक एंड रिसर्च का कितना इंपॉर्टेंस है फॉर अ फर्म टू ग्रो एंड टू गिव कंसिस्टेंट रिटर्न्स, बिकॉज आपने 10 स्टॉक 15 स्टॉक कवर कर लिए, उसके बाद हाउ विल यू फाइंड आउट द नेक्स्ट big companies? How will you try to find the next companies who are in the next leg of growth? So something which you can talk about your back-end research team, core team, which also includes your back-end operations as well, because I've seen sometimes कि operations में नहीं होता, 5 एप्लीकेशन दे दो तो एप्लीकेशन ही नहीं लग पा रहा है। तो देखिए, मैंने जैसे बोला कि हमारी मोटिवेशन क्या है। हमारी मोटिवेशन है ऑर्गेनाइजेशन बनाना। राइट। तो हम डे वन से हमेशा उसी पे लगे हुए हैं। तो जैसे आपको बताता हूँ, पहले तो आपने ऑपरेशंस का बताता हूँ। जब हम 200 करोड़ की हमारी साइज नहीं थी, तब हमने वी वर द फर्स्ट पीएमएस हाउस इन 2021 टू ऑनबोर्ड अ पीएमएस online using Aadhaar based OTP. First one. We actually worked 6 months. We innovated a lot of processes with our custodian, with our partners. तो हमारी सोच ये है कि भाई आप इनएफिशिएंसी को कैसे कम करके एफिशिएंट क्लाइंट एक्सपीरियंस कैसे दो। तो आज हमारी जो पहले जो 8-10 लोगों की टीम थी, टुडे एज ए कंपनी वी आर 85 पीपल। वी हैव ऑफिसेज इन 9 cities, एंड वी हैव रीजनल सेल्स टीम, onboarding टीम, support system, everything is there. We want to make sure our client experience is very seamless, our partner experience is very seamless. I'm not saying we are perfect. We are still investing a lot in technology right now. As we are doing, we are actually building in-house software which I think will redefine a lot of services in the industry in next 12 to 18 months. So we basically want to be ahead of the curve. We don't want to be me too player. हमारा बहुत सिंपल सा क्लियर है, वी डोंट वांट मी टू प्लेयर। क्योंकि मी टू प्लेयर की इज्जत लंबे समय में नहीं होती है। एंड ऐसे ही हमने रिसर्च टीम में भी वी हैव नॉट हायर्ड पीपल लाइक, हम सेल साइड से आते हैं हम, बट सो वी हैव नॉट हायर्ड पीपल हु हैव डन ओनली बाइंग साइड, एंड वी हैव हायर्ड पीपल हु कैन थिंक डिफरेंटली, और वी हैव क्रिएटेड द कल्चर हु कैन थिंक डिफरेंटली। सो ऐसा नहीं है कि विकास खेमानी सारे स्टॉक को लेता है, मेरे एब्सेंस में भी यू नो और मेरे बिना भी बहुत सारे चलते हैं। आई वॉज अभी आउट फॉर 10 days डूइंग माई विपसना। My business worked very well. Team made the call decision, and also there's a team which is working in. So we believe in building culture and processes which not dependent on any person, because otherwise you won't build organization. So that is our very very core philosophy, that build an organization, because कल को आज हम भले 12,000 करोड़ हैं, कल 50,000 करोड़ भी होंगे। हाउ डू वी बड़ा करना है, बढ़िया करना है, तो बढ़िया करने के लिए एक आदमी बढ़िया नहीं कर सकता है। बढ़िया करने के लिए आपको यू नीड अ टीम, यू नीड अ कल्चर, you need similar people with the same mindset. वन मोर थिंग विकास, आपने ये पॉइंट भी कवर किया दैट इन्वेस्टमेंट स्टाइल हैज टू मैच, यू हैव टू लुक एट द फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट स्टाइल, बिकॉज परफॉर्मेंस तो उसके आसपास ही घूमती रहेगी, एंड इफ द मार्केट फेवर्स योर इन्वेस्टमेंट स्टाइल यू विल प्रोबेबली डू बेटर।
what I have seen is that in last few months and years, investors usually come in a strategy and within less than 2 years, 3 years, they try to exit, considering कि हमारा पैसा नहीं बना, हमारी रिटर्न नहीं बनी. So, how do you answer that questions कि मतलब 2 साल 3 साल, what is the right frame that an investor should look when he should invest in, let's say, Carnelian strategies? Because it's very important. So देखिए मैं तो I have always said that don't give us any money which is less than 5 years. I am very happy to grow slow. I have always told people that don't expect. See, we will do our best. We will treat your money as good as our money. So we will do best risk reward opportunity. But आउटकम आना खाली मार्केट के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं. मार्केट आउटकम आना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है. Long term I think it will be fine. And and maybe some point in time we will briefly talk about how do we see India. So मैं मानता हूँ इंडिया अगले 10-15 सालों में is one of the best wealth creation opportunity in the world. So if that's the case then उस टाइम पे आपको लोगों को खाली यही समझाना, भाई आप पैसा अलोकेट करके बैठ जाओ, आप रोज ऊपर नीचे आने भी देखो मत. हाँ, ऑफ कोर्स रिव्यू योर पोर्टफोलियो एनुअली, रिव्यू योर परफॉर्मेंस एनुअली, एंड देन अगर आपने गलत मैनेजर सिलेक्शन किया, यू गाइस द बेस्ट एडवाइस टू सिलेक्ट एडवाइस ऑन दैट, बट मेक दोज चेंजेस. बट अदरवाइज इक्विटी एलोकेशन हैज टू रिमेन फॉर नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स. मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आदमी मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा वो अपनी वेल्थ सुपीरियर क्रिएट करेगा. Exactly. And Vikas, I was discussing it with one of my other team members yesterday. We were looking at your some personal investments you've been holding for decades, and particularly those companies have gone up like 10x, 20x. So just to make sure that how to have patience while holding stocks for so long, because मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या, लोग 2x रिटर्न बना लेते हैं, 3x बना लेते हैं, दे ट्राई टू एग्जिट. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर 10 years, 15 years, 20 years, which we were discussing in few of your companies, I think, where you are strategically or otherwise also you're invested. So how do you hold that patience for next 10 years, 20 years to hold the similar company, hold the same company? So I think it requires patience, conviction, and then I was talking about type C risk of opportunity loss. If you remember, उसमें एक behavioral part मैंने बोला था कि ह्यूमन बिहेवियर लैक बायसेस जो है बहुत बहुत बड़ा प्ले रोल करते हैं. तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बायस होता है. वी टेंड टू होल्ड ऑन टू आवर लॉसेस फॉर लॉन्ग एंड टेंड टू बुक प्रॉफिट्स वेरी फास्ट. क्योंकि सपोज मैंने कोई स्टॉक 100 रुपए पे खरीदा, वो 80 पे लगा, तो मेरे माइंड में एक बेंचमार्किंग हो जाता है इसकी राइट प्राइस 100 रुपया है. तो वो जैसे ही 100 से नीचे आता है, इवन इफ समथिंग हैज चेंज, आई स्टिल होल्ड ऑन टू इट एंड होपिंग इट विल कम बैक 100 एंड आई विल मेक सम मोर मनी. बट जैसे ही वो लगता है 200 रुपया हो गया, तो लगता है अरे ये तो आर्टिफिशियल प्राइस, एक बार भेज दो, वापस नीचे आएगा तब ले लो. ये टिपिकल साइकोलॉजी इन्वेस्टर्स की होती है. बट पीपल हु अंडरस्टैंड, इन्वेस्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि भाई ये कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, टेलविंड है, तो आप लेके बैठे रहो. आप उसको वेल्थ तभी क्रिएट करोगे जब आप उसमें 5, 10, 15 साल बैठे रहे. हमने जब 2020 में, और जब भी आईसीआईसी बैंक हमने अभी तक क्यों नहीं बेचा? हमको लगता है वो बेच के फायदा क्या, अगर वो बेस्ट काम कर रहा है तो चले रहो. एक टाइम से 2 पे बुक हुआ, 2.5 पे बुक हुआ, 3 बुक हुआ, हो सकता है 4 भी हुए, मुझे क्या पता. बट जब तक बिजनेस ठीक कर रहा है तब तक बैठे रहो. तो अल्टीमेटली दोज आर थिंग वी आर मॉनिटरिंग. वी आर नॉट मॉनिटरिंग शेयर प्राइस, वी आर मॉनिटरिंग द बिजनेस क्वालिटी एंड बिजनेस ग्रोथ. सो जब तक आपको मैनेजमेंट और बिजनेस में फेथ है तब तक इन्वेस्टेड रहो. और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग सबने देखा है. जैसे फॉरगेट स्टॉक, आई एम सेइंग इंडिया देखते हैं. 2002 में मेरे को याद है जब मैं एडलवाइस ज्वाइन किया था, वो निफ्टी 813 पॉइंट था. ठीक है, तो आप आज देखो 25,000 पॉइंट हो गया 22-23 साल के अंदर. राइट, लगभग 17-18% की सीएजीआर आएगी. नाउ देखते हैं रिस्क कितना हुआ. यूपीए 1, यूपीए 2, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 3G स्कैम, 4 स्कैम, फ्रिजाइल 5, डीमॉन, जीएसटी, आईएलएफएस क्राइसिस, पेंडेमिक, यूक्रेन वॉर, पहलगाम, इजराइल वॉर. आप जो भी, ये प्रेसिडेंट इलेक्शन, वो प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये स्टेट इलेक्शन, वो सब कुछ हो गया. You can name the risk which has come, but despite that, India has compounded at a fabulous rate. So this is the real compounding, and people who understand that will not start. And the job of the advisors like us is to guide that, saying that not to panic, and guide that remaining invested is the only option, and that's the only way to create wealth. So that's what I would say.
And this again is when do you sell actually? Because अच्छी कंपनी है, ग्रो हो रही है consistently. तो हम लोग चार सिचुएशन में बेचते हैं। नंबर वन, व्हेन जब हमको लगता है कि जिस हाइपोथेसिस से हमने इन्वेस्ट किया था वही गलत था, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है, कि हमने हम्म। सोचा था ये ऐसा होगा पर हमको समझ में आ गया तो ये गलती हो गई हमारी, तो बेच दो। दूसरा, जिस इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस से इन्वेस्ट किया था उसमें कुछ तो मटेरियली बदल गया है। हो सकता है कि आपने कुछ सोच के किया और वो चीज कुछ मतलब ऐसे एक्सटर्नल सिचुएशन है कि बदल गया, तो वो भी हो सकता है। कोई ये तो जानता नहीं फ्यूचर में कैसा होगा, तो जब भी वो मटेरियली चेंज हो गया तब बेच देते हैं नेगेटिव के लिए। हम्म। थर्ड, जब आपको लगता है आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हाइपोथेसिस था वो पूरा प्ले आउट हो गया है, अभी रिस्क रिवॉर्ड ऑफ रिमेनिंग इन्वेस्टेड इज नो मोर देयर। इनफैक्ट समटाइम्स मार्केट में एक्सुबरेंस होती है, सब कुछ फुल्ली प्लेड आउट हो जाता है, आपको लगता है अभी ग्रोथ भी नहीं आएगी, और तो आप उस टाइम पे बेच दो। चौथा, वी कीप लुकिंग स्टडिंग ऑल द न्यू स्टॉक्स। मेनी टाइम्स सम न्यू आइडिया आता है, तो उस न्यू आइडिया को हम लोग हमारे करंट स्टॉक के पोर्टफोलियो से कंपेयर करते हैं कि भाई आइदर इज दिस न्यू आइडिया बेटर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न और रिड्यूसिंग रिस्क, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, देन वी स्विच आउट एंड से इससे इसको स्विच कर दो। सो ब्रॉडली हमारी फोर सिचुएशन है। एंड हम जनरली स्पीकिंग चर्न कम करते हैं, पर हमको समझ में आ गया कि चर्न करना जरूरी है तो हम कर देते हैं, इसलिए हम नहीं सोचेंगे हमारा चर्न रेशियो बढ़ जाएगा तो नहीं बेचेंगे। देन वी डोंट वरी अबाउट द ऑप्टिक्स, वी डू व्हाट इज मेकिंग सेंस एंड व्हाट इज राइट फॉर द पोर्टफोलियो। Okay. Since you have multiple strategies, but I know the flagship remains Shift, and now again I think the focus is a lot on Bharat Amritkal as well. So, just for investors' point of view, how different both strategies can be, and what should an investor look when they are trying to compare with Shift and Amritkal? Because the philosophy, process, back end quality, growth at reasonable price remains same. एब्सोल्युटली, स्टॉक सिलेक्शन इज अ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। शिफ्ट स्ट्रेटजी, जैसा मैंने बताया कि हमने वी सॉ दैट इंडिया में टू बिग स्ट्रक्चरल चेंजेस आर हैपनिंग, नेमली मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज अ डिकेडल चेंज। सो we found out what sit in manufacturing, what sits between import substitution and export oriented kind of setup. Those kind of companies or segments, you invest, and which across auto components, chemical, specialty chemicals, API, pharma, capital goods, industrial ancillaries, garmenting, footwear manufacturing, EMS, defense, across the board. I mean, when I say manufacturing, it is not limited to a sector. So, across the board, you identify those companies which we think can become, 3 to 5 years time, 2 to 3x kind of time. Those are the companies we invest into manufacturing space. And in technology, where we see, especially there also we invest into companies which can grow faster than the large cap index. Plus, they are doing something different in the new trends, like product oriented companies, like ER&D companies, which is ER&D, the fastest growing segment, cybersecurity is like fastest growing segment. Those kind of companies, we invest into technology where there's a shift happening, when there's a transition happening. So these are the kind of companies we build. Typically 25 to 30 stocks portfolio, 75% in manufacturing, 25% technology. This can vary 10% plus minus, because when we think that we again it's more our view tactically on that, we move up and down. And इन इसमें एक चीज और जानने की जरूरत है कि when lot of time people रिजेक्ट या थीमेटिक फंड हम नहीं करते हैं। थीमेटिक एक जनरल एक परसेप्शन होता है, तो अगर एक दूसरा वे, ब्रॉडर वे टू थिंक अबाउट इट, इसके अंदर बैंकिंग एंड रियल एस्टेट को छोड़ के हम लोग सब कुछ कर सकते हैं प्रैक्टिकली, राइट? बिकॉज इट कवर्स फेयरली, इट कवर्स कंज्यूमर, इट कवर्स एंड स्टाइल्स अक्रॉस वेरी, जहां पे बट देयर हैज टू बी मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट टू इट, देयर हैज टू बी टेक्नोलॉजी एलिमेंट टू इट। सो दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट the manufacturing, the shift strategy, and returns are there for you to see. But more important aspect I want to tell you is that like we have this framework called faster, stronger, cheaper framework, and where uh, I will just show that. And this presentation is a very detailed presentation, again, if anybody wants to see. So if you see our faster, stronger, cheaper, our revenue and profits should grow more than the index. It should be stronger on ROE and debt to equity ratio. So ROE is about 19% vis-a-vis benchmark of 15%. Leverage is 0.1, despite being manufacturing, hardly any leverage. PEG ratio is 1.1 times, and beta is 1. Now here you must understand this is benchmarked against BSE 500, which is a large cap index. Because of SEBI rule, we only follow one index now. But if you were to benchmark with the mid and small cap index, you will find it like zero point 0.6, 0.7 times. So we have taken lesser risk and delivered almost 17% kind of outperformance over
over last 5 years, close to 5 years in this strategy. So this is the very, very sort of differentiated and good strategy for us. And a lot of people have asked me in 21, 22, 23, 24, 25, लगता नहीं आपको मैन्युफैक्चरिंग पूरा हो गया, बहुत हो गया. Now, बिल्कुल सही बात है कि देयर आर लॉट ऑफ सेगमेंट जहाँ पे फैड्स बन गई है, जहाँ पे बहुत सारा एक्साइटमेंट चले गया है. सो बट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग थीम विल लास्ट फॉर 10 years. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, व्हेन वी लॉन्च दिस स्ट्रेटजी इन अक्टूबर 2020 वी वर लोडेड विद केमिकल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल, एंड बाय द टाइम January 22 happened, everybody and his uncle was buying specialty chemical and every valuation. We sold all our chemicals and we bought other stocks in manufacturing. Now last 6 months we bought a lot of chemicals back. So it's not that when we are saying manufacturing and chemicals हम लोग ऐसा उसके अंदर intermittent cycles को play नहीं करेंगे. Within all segments and sub segments there will be intermittent cycles, and it is our job to play that looking at the sector and stock. But manufacturing, the theme will remain for a very, very long period of time, right? So there are right now exuberant segments which we are avoiding. We are not chasing them, but otherwise we are right now very significantly overweight pharma. I mean, Laurus Laboratories जब हमने लिया था 360-70 में, nobody wanted to buy it. The people hated it. Today आज 820-30 पे सब लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं. So you take a very differentiated call. When we launched IT, everybody had IT negative on IT. We've been making good money in IT, and some of the stocks have become 4x, 5x for in IT. So it is not about macro views. So we have recently bought Biocon. Hardly anybody owns Biocon. We have a very large position. If you see, we have taken 5% weight. It's not that we have taken some fuddu weight and. So when we are convinced, we take a very large convinced weight, and you can see the sectoral allocation of the strategy as well. Anyway, I'm not going to data because you already have this presentation, I'm assuming. Yeah. Bharat Amrit Kal Fund, again, is a very, very, and I will probably, since, it will cover India also. So let me give you a short version of, it's a very long presentation, and I will, say that Vinayak, there's a 20 minutes video, circulate to your partners. That is one of the, in my opinion, anybody who listens, has a very different perspective on India. Because when we launched our Bharat Amrit Kal Fund, we could have called it Compounder 2 also, right? But we said, let us call it so that people, and give content so that people can look at India in the right way. And what are we trying to say here? We are saying, see, look, India is in next 20-25 years will become a developed nation. And our GDP, which is about $4 trillion, will go to $30 trillion. Per capita income will go from $2,500 to $18,000. Why do we believe that it can happen this time? Right? So if you see, last 10 years, a lot of foundational reforms have happened. We have had long pending economic reforms have been carried out. We have digital reforms. We have had massive infrastructure reforms. All those things so foundation has been laid. But more importantly, I think there's a very big mindset shift which has happened in India. And that mindset shift gives us a lot of confidence in terms of how India is going to sort of propel in the future. What are these mindset shifts? Broadly 5. Number one mindset shift which has happened in India is we have moved away from incremental mindset to exponential mindset. Meaning, हम लोग ये नहीं सोचते कि हमको 10 साल, 15, 20 साल लगेगा. We want to do things at a rapid pace, sense of urgency, everything in 3 years, 5 years. Even companies are putting capex, which is like, more than what they put in the last 50 years. So everybody's thinking exponentially, not thinking कि मेरे को 10% growth करना है. And that's a very big change, right? Secondly, India is moved from constrained mindset to non-constrained mindset. What do I mean by that? Historically, most of us have grown up believing that हम गरीब देश हैं, हमारे पास पैसा नहीं है. In fact, famous A.K. Antony statement in Parliament 2012 that we don't have money for defense. I'm sure most of us remember that. Today, same countries, same bureaucracy, same economy, same people. You don't hear we don't have money. We are building best in class infrastructure. We are building best in class whatever it takes. हम चांद पे भी जा रहे हैं, जहां सब कुछ कर रहे हैं. हम गरीबी भी दूर कर रहे हैं, सड़कें भी बना रहे हैं, मेट्रो भी बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन भी बना रहे हैं, बेस्ट एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, एंड वी आर नॉट सेइंग वी डोंट हैव मनी. सो दिस इज अ वेरी बिग चेंज इन द माइंडसेट, एंड this has a huge ramification on the growth, right? Third, historically, whenever India faced any problem, we look towards West for solution. 1992 में जब हमको क्राइसिस हुई तो हमको IMF का पैकेज मिला, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया. ये बात हो रहा है कि मनमोहन सिंह साहब को उसकी क्रेडिट मिली, बट हमने उनका पूरा कॉपी पेस्ट किया था कि उन्होंने बोला हमने कर दिया. Today, no more the case. India is thinking, has found its confidence कि we can find solutions suiting to our society in our own way. UPI, COVID, सब उसका एग्जाम्पल है. कोविड वैक्सीन, जब कोविड हुआ तब हमने जो स्टिमुलस दिया, everybody criticized that कि why we are not doing best like. But now it is being taught as a case study that India's stimulus was best in the world, right?
सो हम लोग अभी हमारी वी हैव फाउंड कॉन्फिडेंस कि हमको हमको आता है करना। हम लोगों की वो मानसिक गुलामी, इंटेलेक्चुअल जो हमारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी वो खत्म हो गई, हम लोग कर सकते हैं। फोर्थ, इंडिया इनोवेटिंग एट अ स्केल एंड लो कॉस्ट। यूपीआई, टेलीकॉम, क्लासिक एग्जांपल। नोवेयर इन द वर्ल्ड लेस देन $2 आपको अनलिमिटेड डेटा ऑन द फोन मिलता है, इंक्लूडिंग चाइना। नो, दिस हैज अ ह्यूज, ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस हो रही हैं। दिस इज ह्यूज इकोनॉमिक ramification बिकॉज आपकी लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री has access to same thing which you and I have, and that is what is inclusive growth, and that is what drives the economic growth in a big way. And last but not the least, when it comes to global stage, India does not sit in the corner. It is sitting in the center, driving the agenda and saying, so India's status globally has gone very differently. So all these things have a very huge implication on the growth profile of the country. Broadly, it will lead to three things: strength, scale, and speed. We are the most populous nation on the planet. We are the youngest nation on the planet, and we are the most aspirational nation on the planet. अभी आप देखिए, कोई भी एक कंपनी को लीजिए जिसने पिछले 15-20 सालों में वेल्थ क्रिएट किया है, 30 सालों में कोई भी टाइम पे लीजिए, उसमें आपको तीन चीजें कॉमन मिलेंगी। कंपनी की बात करूंगा, स्ट्रेंथ, स्केल एंड स्पीड। ये अभी कंट्री के लेवल पे हो रहा है। तो माई बिलीफ इज दैट इंडिया विल क्रिएट मैसिव वेल्थ ओवर नेक्स्ट 10-15 years. One trend, everything else can change. One trend cannot be taken away from us is our demographic. India is the 28 years of youngest age. Two-thirds of our population is working population. We will supply 25% of the incremental workforce globally. So many people working and consuming is nothing but GDP growth, right? So India is and Japan is old, Europe is old, China is getting old. In fact, China has an interesting problem because they are 38 years of median age, and because of their one child policy, today one working couple has 4 dependent parents and 2 dependent children. So you have 6 dependent on a one working capital. It's a huge social strain. That's the reason China is fast taking labor cost high. Their labor cost has gone away in last 10 years from $200 to $1,200, right? So इंडिया का कोई कंपैरिजन जो सेटअप है कहीं है ही नहीं। सो ये इंडिया का अगला 10-15 साल इज वेरी वेरी सॉलिड एंड सिग्निफिकेंट। नाउ लेट अस लुक एट फ्रॉम अ कॉन्टेक्स्ट परस्पेक्टिव व्हाट कैन हैपन, राइट? सो लास्ट ईयर टोटल इंडिया का नफा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट वाज $160 billion, राइट? दिस नंबर ओवर नेक्स्ट लेट्स से 10 years, 2035 ले लो आप, will go to $1 trillion. But more importantly, before that, I tell you, 2001 में ये नंबर था $8 trillion. So suppose think about it, if I was making this presentation in 2001, when economic profit was $8 billion, then I would say 20 साल में ये $150 billion हो जाएगा. Most people would laughed at me, right? Because ये बोला रैंडम फंड में कुछ अपना माल बेच रहा है, तो सुन लो एंड डिस्काउंट कर दो, राइट? बट फैक्ट इज दैट ये 8 बिलियन का आज 160-70 बिलियन डॉलर हो गया है। एंड आप ये हमारी प्रेजेंटेशन सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा डेटा बेटा मिले। 177 बिलियन हो गया, राइट? ये जो नंबर है अगले 10 सालों में $1 ट्रिलियन हो जाएगा, राइट? इट मीन्स आवर मार्केट कैप विल बी बिटवीन 20 to 25 ट्रिलियन डॉलर, जो आज $5 ट्रिलियन है। तो इसका मतलब निफ्टी विल बी बिटवीन lakh to 1,25,000, राइट? नाउ क्वेश्चन कम्स कि भाई लोग मेरे को पूछते हैं कब इन्वेस्ट करने का, 24 पे करने का, 25 पे करने का। अरे आपको अगर ये समझ में आएगा कि लाख से 1.25 लाख होने वाला है तो क्या फर्क पड़ता है भाई? लोग पूछते हैं कि SIP करने का, अपफ्रंट करने का। मैं तो ये बोलता हूँ जब आपके पास पैसा तब करने का। अभी अगर आपको वही समझ में आ गया कि ये 1 लाख 1.25 लाख रुपए, अगर आपको पैसा चाहिए, नहीं तो अगर पैसा चाहिए तो मैं उसकी बात अलग है। सो दैट इज हाउ थिंग्स चेंज। लाइक अनदर, इफ यू सी दिस टेबल, how things change when you look at with a historical perspective. Number of companies more than $1 billion in 2000 were only 20. Today we have 500 plus companies. ये नंबर 5,000 हो जाएगा। इन 2000 में 10 बिलियन की खाली 2 कंपनी थी, आज 100 कंपनियां हैं। 1 ट्रिलियन की, 100 बिलियन की एक भी कंपनी थी, आज 4 कंपनियां हैं, और ये नंबर 25 हो जाएगा। तो ये होने वाला है, ये हमारी आंखों के सामने हुआ है। मैं इतने सालों से मार्केट में हूँ, जब हमने प्रेजेंटेशन बनाई थी तो ये डेटा निकाला, तो आई वाज ऑल्सो सरप्राइज कि ये हमारी आंखों के सामने हुआ, हमको समझ में नहीं आता है। तो लॉट ऑफ टाइम व्हेन द डेटा यू सी, it just hits you hard. So one of the objective of doing this whole Bharat Amrit Kal Fund launch along with this presentation is to also build perspective, to see India in the right perspective, ki how India is one of the best wealth creation story over the next 10-15 years. And once you have that, then you should remain invested and take the drawdowns in the stride and say move on in life. So this is what I would say.
आई एम श्योर दिस क्वेश्चन ऑल्सो विल कम, लेट मी सो टेक इट, कि लिक्विडिटी। तो अर्निंग ग्रोथ का तो मैंने बता दिया, लिक्विडिटी का बताता हूँ। अभी पहले डोमेस्टिक लिक्विडिटी की बात करते हैं। तो अभी टोटल हाउस होल्ड एक्सपोजर टू इक्विटी इज अबाउट 5-6%। 10 साल पहले 1% था। तो हमने एक डेटा एनालिसिस किया कि ये नंबर अगले 10 साल में 10% होता है, जो चाइना में 15 है, यूएस में 35% है, तो क्या हो सकता है? वी विल गेट एडिशनल $2 ट्रिलियन ऑफ फ्लोस फ्रॉम द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। सेम थिंग अगर मैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करूं, आज वो सब अंडरवेट है, 1.5% पे है। अगर वो इक्वल वेट भी होते हैं तो हमारा $1.5 ट्रिलियन पैसा आएगा। तो मेरा मानना है कि अगले 8-10 सालों में इतना पैसा आएगा कि इंडिया विल गेट फर्दर रिलेटेड। जो वैल्यूएशन की आज बात करते हैं, महंगा महंगा, माई कन्विक्शन इंडिया विल गेट फर्दर रिलेटेड। एंड दैट इज व्हाट वन हैज टू अंडरस्टैंड। अर्निंग ग्रोथ एंड लिक्विडिटी दोनों कंसिस्टेंट चलता है तो ही मार्केट में वैल्यू क्रिएट होता है। अर्निंग रहेगा, लिक्विडिटी नहीं होगा तो भी नहीं होगा, लिक्विडिटी होगा तो अर्निंग नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। दोनों का कांस्टेंट तालमेल होना जरूरी है। एंड लॉन्ग टर्म में ये दोनों का तालमेल मुझे फुल दिखता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वी आर इन वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ क्रिएशन साइकिल ऑफ इंडिया। एंड एज बिल गेट्स सेड दैट मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट कैन बी अचीव्ड इन 1 ईयर, अंडर एस्टिमेट व्हाट कैन बी अचीव्ड इन 10 ईयर्स। वो 10 साल देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड इज डिजाइन फॉर शॉर्ट टर्म। एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल टू शॉर्ट टर्म। अगर कोई मेरा पिछले ये स्टॉक, अगर मैं आपको ये नहीं बोलता कि $160 बिलियन का आज का प्रॉफिट 8 था 20 साल पहले, तो आप मेरा 1 ट्रिलियन का मानते ही नहीं थे। हो सकता है क्या? क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा दिखता था 10 साल में। पर ये 8 का 160-70 हुआ है, तो अभी एक ट्रिलियन शायद सोच में आ जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पार्ट है विच वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड एज अ पार्टिसिपेंट। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि लोगों को समझाएं कि इसको इस नजरिए से देखो, तो क्या आपके भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि मार्केट क्या लगता है। अभी वो 25,000 पे आपको 1 लाख में जाना, तो मार्केट क्या लगता है, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को लगता है मार्केट 22 हो गया तो भी क्या फर्क पड़ता है? तो वो मार्केट क्या लगता है वाला क्वेश्चन कम हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो आई विल नॉट आस्क देन कि व्हाट इज योर व्यूज मार्केट ऑन क्या लगता मार्केट, है? बिकॉज वैसे भी आपने बोला कि शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि अभी अगर आपको कोई पैसा देता है तो हाउ मच टाइम यू टेक टू डिप्लॉय, और इज इट यू डिप्लॉय इट ओवर 1 डे, 2 डे, 1 वीक, 2 वीक? सो व्हाट इज दैट फिलोसफी? नहीं नहीं, आपका मैं शॉर्ट टर्म क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ, क्योंकि वो मैं कितना भी बोलूँ लोगों को शॉर्ट टर्म क्वेश्चन तो रहेगा ही नहीं, तो मन में ऐसा लगेगा कॉल पूरा नहीं हुआ, शांति नहीं आई। तो हाँ। वो भी बता देता हूँ। सो आप देखो, लास्ट ईयर कॉर्पोरेट अर्निंग स्लो डाउन हुई बिकॉज वी हैड अ लिक्विडिटी स्क्वीज इन द सिस्टम। आरबीआई गवर्नर, प्रीवियस गवर्नर, इन ऑर्डर टू डिफेंड रुपी, ही क्रिएटेड ₹3.5 लाख का लिक्विडिटी डेफिसिट। एंड इलेक्शन आया लास्ट ईयर, उसकी वजह से भी लिक्विडिटी स्क्वीज हो गया। तो उसकी इंपैक्ट 2 क्वार्टर से कॉर्पोरेट नफे पे हुई। कॉर्पोरेट प्रॉफिट स्टार्ट स्लोइंग डाउन इन दिसंबर क्वार्टर। अब आप देखोगे फास्ट फॉरवर्ड, नए गवर्नर साहब आए हैं पिछले 6 महीने से, इन्होंने नोट ओनली उन्होंने लिक्विडिटी डेफिसिट को लिक्विडिटी सरप्लस बना दिया 4 लाख, प्लस इंटरेस्ट रेट्स काटी है। तो जो पहले नेगेटिव इंपैक्ट हो, वो 2 क्वार्टर के बाद विद द लाइक पॉजिटिव इंपैक्ट भी आएगा। तो मेरा ये मानना है ये साल कॉर्पोरेट अर्निंग बहुत अच्छी रहेगी, करीबन 14, 15, 16% के आसपास रहनी चाहिए। और अर्निंग रहेगी तो मार्केट ठीक ठाक करेगा ही। तो एंड जो इंटरेस्ट रेट्स, कोई भी एक्चुअली इन्वेस्टर के लिए, मतलब हमने जो अभी ट्रम्प टैरिफ की बात आई थी 2 अप्रैल के बाद में, तो हमने 15 अप्रैल को एक हमारा कॉल किया था इन्वेस्टर्स के साथ, बिकॉज सब लोग पैनिक में थे। तो उस कॉल पे मैंने एक चीज बोली थी कि व्हाट आरबीआई गवर्नर इज डूइंग इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट ट्रम्प इज डूइंग। एंड I don't know whether in 3 months this tariff thing will get over or not, but I know कि in this financial year we will hit new high। क्योंकि हमारा एक कन्विक्शन था अर्निंग आएगी, छोटा मोटा टर्नओवर। एंड इन द एंटायर ड्रो डाउन वी नेवर सेट ऑन कैश, वी वर फुल्ली कन्विंस्ड। एंड वी वर फुल्ली कन्विंस्ड एंड जो भी पैसा आया हम लोग फुल्ली डिप्लॉय कर रहे थे। क्योंकि जब हमको लगता है कि भाई हमारे पास आइडियाज भी है और मार्केट भी अच्छा दे रहा है, एज ए इक्विटी इन्वेस्टर आपके लिए ड्रीम होता है कि इंटरेस्ट रेट कट रही है और मार्केट में नीचे आ जा रहा है, आप कैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको नीचे मार्केट मिल रहा है इंटरेस्ट रेट कट के साथ में। ये तो एक इक्विटी इन्वेस्टर के लिए ड्रीम होता है। तो हमको अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने पूरा डिप्लॉय कर दिया। तो आज भी मुझे लगता नहीं कोई बहुत कुछ बदल गया है। तो वी आर क्वाइट पॉजिटिव इन द मार्केट एंड विल डिप्लॉय। आई मीन, so our deployment strategy is more stock specific than really, sometimes we take 15 days, sometimes we take 30 days, sometimes we take immediate, depending on the how stock portfolio we are building. Okay, okay, okay. Any view on today's time? Let's say somebody gives you money next week. How much time is gonna take to deploy? Probably week 10 days. Week 10 days. Okay. ठीक है, I think Vikas, thank you so much. I think this presentation has been amazing. But I'll just open the forum for 5-10 minutes for a Q&A if somebody has any specific questions.
So, guys, you can please write down your questions. Maybe I can ask the relevant ones, or in case somebody wants to, specifically ask any question, you can raise your hand and maybe we can unmute yourself. So one question is there because how is the portfolio of Contra strategy? I think it's more tilted towards large cap, but still, if you can highlight. सो बेसिकली वहां पे हमारा आइडिया है कि यू नो थोड़ा हाई डिविडेंड यील्ड, लो ग्रोथ, बट रिस्क थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रिस्क थोड़ी कम हो। हाँ। सो एंड लार्जली लार्ज कैप, सो वहां पे आई थिंक मेरे को लगता है 70-80% लार्ज कैप होगा। Hmm. हाँ, बट दोज कंपनीज आर आल्सो गुड। आई मीन व्हेन वी लॉन्च दैट स्ट्रेटजी वी टोल्ड पीपल 12-13% आना चाहिए, आ गया 30% प्लस, 35% प्लस रिटर्न। सो वो Hmm. एक्स्ट्रा मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट आई एम जनरली सेइंग थोड़ा सा कॉन्ट्रा, जिसमें थोड़ा कॉन्ट्रा साइक्लिकल प्ले लेते हैं, जहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, बट टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आई है उस तरह का, स्पेशल सिचुएशन हो गया, डीप वैल्यू ट्रेड हो गए, वो सब के ट्रेड वहां पे लेते हैं। Are we planning to take exposure into any overseas companies? Not really. I think, हमारा बहुत सिंपल सा फंडा है बॉस, द बेस्ट मार्केट इज एट आवर डोर स्टेप्स। आई डोंट वांट टू गो एंड लुक एट समथिंग वेयर ए वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। सेकेंडली, ये सब आई कॉल इट अ रोमांटिक नोशन, चाइना में डाल दो, अमेरिका में डाल दो यार। आई थिंक इन माय ओपिनियन लास्ट 20 years ऑल्सो इंडिया has given a बेस्ट डॉलर टर्म रिटर्न इवन ahead of यूएस। राइट, अगर कोई डेटा देखेगा तो चाइना का तो पिछले 20 साल का रिटर्न ही नहीं है। पर वो क्या सस्ता है, सस्ता करके वो सस्ता है, कोई कारण तो होगा ना। सो वी डोंट बिलीव दैट चाइना चाइनीज को नहीं समझता, हमको क्या समझेगा? तो इसलिए वी डोंट बिलीव, हमको वी डू व्हाट वी अंडरस्टैंड। हेंस वी हैव नेवर गॉट टेम्प्टेड टू डू, एंड आई थिंक देयर इज एनफ एंड मोर मनी टू बी मेड इन इंडिया। सो क्यों इधर उधर भागने का है? ओके, अभी आईटी का रिजल्ट आना ही चालू हुआ है। आई थिंक विप्रो और टीसीएस का आया है तो, बट दीज आर मोर आईटी सर्विसेज कंपनी, नॉट द ones which probably you hold in your portfolio. But somebody is asking any view post Q1 results on the IT as a sector. सी अगर आईटी सेक्टर वी आर पॉजिटिव बॉस, हर कंपनी का अलग अलग मॉडल है। आईटी सेक्टर 2001 में $10 बिलियन था जब Y2K था, एवरीबडी रोट इट ऑफ कि अभी क्या होगा। आज $250 बिलियन की इंडस्ट्री है, और अगले 5-7 सालों में उधर 500 बिलियन की इंडस्ट्री होगी। कि आप चिंता मत करो, एआई वेआई से कुछ नहीं होने वाला है। एवरी टाइम टेक्नोलॉजी डिसरप्शन हैपेंस, opportunity only expands. So different company will gain. So we are looking for to invest into companies which will gain from this disruption rather than buying Wipros and TCS of the world. So I mean, you have to see where to put money. So आईटी पे कुछ बड़ा पॉजिटिव व्यू है, बट ऐसा कोई हर कंपनी पे व्यू लेके कोई फायदा नहीं है। Okay. Somebody is asking if we want small cap and mid cap. Again, let me just put it as my favorite Yeah. topic. Very often people think small caps are more risky, and I would say that, see, if actual risk is not in the market cap, actual risk is in the management and the business quality. If I like a business and I like management, I would rather buy it small. So actually it's not a market cap which is risky, it is the management quality in the business. So हमको उसमें कभी, so ये wrong notion है या मिड एंड स्मॉल कैप में कौन सी टाइप ऑफ रिस्क ज्यादा? टाइप बी, बिकॉज वो वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है उसमें। कई मार्केट गिरता है तो सबसे ज्यादा मिड एंड स्मॉल, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। सो अगर इफ यू आर वरीड अबाउट टाइप बी रिस्क, शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स, देन यू मस्ट नॉट इन्वेस्ट इन मिड एंड स्मॉल कैप। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। And you don't think that tariff policies are going to impact India in a very big way in the long run? स्ट्रक्चरली नॉट, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट द डिटेल्स आर, राइट। बट सी, मैं ये बोलता हूँ टैरिफ का अगेन, as long as our tariff is equal or below China, we are okay. Only one situation is if it is above China, then we might have little problem. But that you can assign the probability कि कितना होगा। Okay. And anything on the private capex, because we have seen that private capex has been slow. So you believe that it is going to pick up? आप लोग सबको आई विल एडवाइज, हमारा लेटर पढ़िए, पढ़ा करा सबको पढ़िए, क्योंकि हमने इस पे लिखा था एक गलत नैरेटिव है। इनफैक्ट why people say private capex is slow, because they think that they make it a credit growth as a proxy to the capex, which is a historical thing। 2003 4 5 से जब क्रेडिट ग्रोथ हो रहा था मतलब केपेक्स हो रहा है। दिस Hmm. टाइम अराउंड क्रेडिट ग्रोथ इज फंडेड बाय इंटरनल अक्रूवल्स एंड इक्विटी फंड रेजिंग। हेंस वो क्रेडिट ग्रोथ का नंबर दिखता नहीं है। तो सब लोग लिखते रहते हैं क्रेडिट ग्रोथ। केपेक्स का एक्चुअल प्रॉक्सी इज ऑर्डर बुक ऑफ ऑल द कंपनीज। वी हैव इन शिफ्ट स्ट्रेटजी कंपनी लाइक अनूप इंजीनियरिंग टू टिमकेन टू, वी हैव हैड 10x रिटर्न इन दिस लास्ट 4 years when everybody saying capex नहीं हो रहा है। उनकी ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई है, उनका ग्रोथ आ रहा है, मार्जिन हाई है, और बोलते केपेक्स नहीं हो रहा। तो भैया कहां से आ रहे हैं ऑर्डर? ऑर्डर साइकिल हैज गॉन अप फ्रॉम 6-8 months to 12-18 months। तो ये कौन कर रहा है फिर? तो ये गलत नोशन है, रॉन्ग नोशन है।
Okay. Anything on a lot of promoters selling their equity, although it's also mixed views because some people say that the what is the purpose of promoter selling is also equally important when you have to look at. But anything that you want to answer that, because a lot of promoter selling has happened in last 6 months when the markets were doing really well. आप अभी तो अभी इसका आई विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज आप हमारे लेटर्स नहीं पढ़ते हैं। अच्छा। तो अगर आप हमारे ट्रू पार्टनर है तो आप हमारे लेटर्स पढ़िए। लास्ट मंथ ही हमने इस पे एक बहुत अच्छा लेटर लिखा है ओके। कि वाई प्रमोटर सेलिंग इज नॉट नेगेटिव। नो, आई हैव रेड दैट, आई हैव रेड तो दैट। इसी हाँ बट तो आई आप सारे थिंक पार्टनर्स मैं को सबको पढ़वाइए वो। भेजता हूँ, दैट्स व्हाई आप आई नो, पढ़िए बिकॉज यू क्योंकि मेंशन्ड दैट व्हाई promoter is selling is also equally important, you have to look तो at आई that विल is. नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। आई वुड हूसोएवर नीड्स आंसर दिस क्वेश्चन मस्ट रीड दैट लेटर। Okay, anything on the post tax returns, considering the PMS vehicle is, the short term capital gain also gets impacted, so how much is the churn, if we can discuss broadly on that बहुत part? कम चर्न है, वेरी कम चर्न। हाँ। जैसे हमने शिफ्ट स्ट्रैटेजी में कितने स्टॉक 2018 से नहीं बेचे हैं, सॉरी 2020 से नहीं बेचे हैं। सो इट्स हम्म। नॉट अबाउट दैट। बट सेकेंडली सी देखो, हर आदमी अपना मतलब नैरेटिव कर सकता है मुझसे उसमें। वी डोंट डू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एट ऑल। मोस्ट ऑफ इट आर लॉन्ग टर्म। नाउ हम्म। लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में भी लगता है ऑफकोर्स इंटरनल कंपाउंडिंग उसमें होती है, इंटरनल नहीं लगता है। तो जब आप रिडीम करते हो तब आपको लगता है, राइट? सो हम्म। फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव देयर कुड बी सम इनएफिशिएंसी ऑफ एक आधा टका हम्म। over a long period of time, but then that gets compensated by far with the alpha। आप कहाँ 16-17% अल्फा कौन सी स्ट्रैटेजी देती है? कहाँ पे आठ हमारे कंपाउंडर के 8% अल्फा है? हाउ मेनी म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजीज आर आउट परफॉर्मिंग बाय 8%, राइट? सो हम्म। यू हैव टू सी what is the sort of trade-off between two. One more thing, which is also I am also personally feeling that margin expansion has been at the peak. So do you think now the next leg of earnings growth will come from margin expansion or probably the top line growth? देखो कभी भी ऐसा वन नहीं होता है। यू शुड अज्यूम दैट ओनली टॉप लाइन ग्रोथ विल कम। हाँ। ओके, इंडिया will grow at 6.5-7%, 6.5-7%। इन्फ्लेशन विल भी 4 से 5%। तो हम्म। आपकी ब्रॉडली 12-13% की टॉप लाइन ग्रोथ होगी, हम्म। राइट? नाउ अर्निंग ग्रोथ जनरली स्पीकिंग 1-2% की ज्यादा हो सकती है, राइट? अगर वो नहीं होगी तो 12-13% अपनी ग्रोथ होगी। हम्म। नाउ जब हम मैं आपको वो जो हमारा मैजिक वैजिक वाला सुना रहा था, तो हमारी जॉब है टू बिकॉज जब इंडिया की ग्रोथ 12% हो रही है तो हर कंपनी की ग्रोथ 12 नहीं होती, किसी की 20 होती है, किसी की 0 होती है। तो इट इज जॉब ऑफ एक्टिव फंड मैनेजर to take out 20% growth from that 12% growth environment of the country, and that is how one should see। तो हमारा टारगेट ही रहता है कि भाई हम कोई कंपनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 साल में 2.5 से 3 गुना हो सकती है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग व्हाट वी थिंक। सो कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग खाली ग्रोथ को लेकर, कंट्री लेवल की ग्रोथ को करना चाहिए। 10 साल की मैं ग्रोथ कर रहा हूं तो कंट्री लेवल को ग्रोथ करके करना चाहिए, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन इज ऑल इंटरमीडिएट स्टोरी। इट इज नॉट अ सस्टेनेबल 10 ईयर स्टोरी। हम्म। So basically, we have to expect that the top line number has to grow. We can't expect on. एंड दैट विल हैपन। आई एम सेइंग अगर आपकी इकोनॉमी 6-7% ग्रो कर रही है, 4-5%, तो 12-13% की ग्रोथ आएगी। Okay. Anything on the financial inclusion, wealth management, our line of business where we are? Do you pick up any such companies? Do you see the growth? We see growth. I think, see, again, business structurally, we see the growth. We don't own anything currently. And reason being, we think that this industry में अभी थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो वी हैव राइट नाउ मैं बोलता हूँ कि आपके ना म्यूजिकल चेयर चल रहा है अभी आजकल। तो उस चक्कर में थोड़ा सा हो सकता है कॉस्ट ऊपर जाए, तो मार्जिन कैन बी अंडर प्रेशर। सो दैट्स द रीजन वी हैव बीन लिटिल बिट कॉशियस ऑन दिस इंडस्ट्री राइट नाउ। बट स्ट्रक्चरली स्पीकिंग इट्स अ पॉजिटिव। एट सम पॉइंट इन टाइम वी वॉच एवरीथिंग, वी मॉनिटर एवरीथिंग, एंड वी विल जहां पे हमको रिस्क रिवॉर्ड समझ में आएगा विल बाय। Okay, okay. Any final thoughts for our investors when they are looking to invest in a PMS strategy? Any final thoughts before we conclude the call? आई थिंक फाइनल थॉट ये बोलूंगा, दो चीज। आई थिंक नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया इज द बिगेस्ट रिस्क। Hmm. if you don't invest you will miss out, and the problem is that people who miss out they always tend, they invariably come at the peak। वो थोड़ा मतलब वो फिर आके then people like us get blamed। So create right perspective। I think as a participant of the industry, I do believe our job is to create right perspective and create that right perspective। And secondly, I think we will write another note this month, please do look forward for that। Don't invest out of FOMO, don't chase fads।
When you invest out of FOMO, you invariably lose capital. Keep our risk framework in mind. Type A risk never to be taken. Type B risk never to be worried about. Type C risk never to be taken. जबकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इफ यू सी ऑलवेज एंड नॉट आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी ऑलवेज मैं कितनी मीटिंग करता हूँ सारे क्वेश्चन आते हैं टाइप बी रिस्क पे मार्केट क्या लगता है इट्स अ टाइप बी रिस्क एक्चुअली मेरे को कोई टाइप ए टाइप सी रिस्क क्वेश्चन पूछने चाहिए तो आई थिंक स्टार्ट इन एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स ऑन दैट वी मस्ट नॉट टेक टाइप ए रिस्क आजकल एक नया फैड चल रहा है इन्वेस्टिंग इनटू प्राइवेट कंपनीज राइट ये प्राइवेट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट प्राइवेट कंपनीज इसके ऊपर हम लिख रहे हैं जहां पे लोगों ने इन अ शॉर्ट टाइम बहुत बड़ा पैसा तोड़ा है बनेगा तो पता नहीं कितना बनेगा सो दोज आर द फैड्स व्हिच आर गोइंग ऑन सो अवॉइड फैड्स डोंट इन्वेस्ट आउट ऑफ फोमो Because if you दैट्स can ऑल आई से explain fad once again, because I think there was question also one in between. फैड Because मतलब बहुत जब सब लोग उसी के पीछे चले हुए हैं लगे हुए हैं जैसे कि 2020-21 में सबको न्यू टेक करना था नाउ आई रिमेम्बर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर डोंट अंडरस्टैंड न्यू टेक बट वो न्यू टेक करना है इसलिए करना है। क्यों करना है भाई वो पेटीएम को 3,000 रुपए पे ले लिया आईपीओ 1,800 रुपए पे अभी आप अभी प्राइवेट का फैड चल रहा है तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का लोगों ने 11,000 रुपए शेयर ले लिया क्योंकि वो प्राइवेट का फैड चल रहा है मेरा बाजू वाले ने खरीदा तो मेरे को भी खरीदना है बट लिस्टिंग तो 600 मतलब आईपीओ तो उससे 30-40% नीचे में हुआ सो Hmm. कहने का मतलब when people invest not based on the merits but because everybody else is doing Hmm. that is fad आज रिन्यूएबल का फैड चल रहा है डिफेंस का फैड चल रहा है पैसा उसमें बनता नहीं उसमें एक्चुअली रिस्क बहुत ज्यादा होती है when everybody is doing you must understand कि बॉस इट्स स्टोरीज प्लेड आउट when every डे न्यूज़पेपर में स्टोरी आ रही है तो आप समझ लो कि तो यू हैव टू बी गेम अर्ली इन द गेम यू नॉट डोंट हैव टू बी लेट इन द गेम इफ यू आर लेट इन द गेम then you are going to be the killed one who will be killed Perfect. Perfect. I think wonderful, wonderful. I think we have everything covered almost. So, thank you so much, Vikas. I think it was wonderful. Somehow people were not able to join after a certain limit. I think we breached our Zoom limit. Maybe we'll do one more call in a few weeks. So where we रिकॉर्डिंग can है ना रिकॉर्डिंग आप शेयर कर recording तो दीजिएगा भेज ही दूंगा मैं, but I think some people wanted to join. So maybe थोड़ा next पैसा month, ज्यादा दिया whenever करो your लोगों को schedule allows, we'll try to schedule one more call with a larger audience. ठीक है थैंक यू ओके सो मच बॉस विकास चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन थैंक यू थैंक यू एवरीवन या